हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई का पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल्स ऑफ प्लानट ऑफ डेवलपमेंट। कक्षा 12वीं जो है हमारे समक्ष आया है पॉलिटिकल साइंस का राजनीति विज्ञान का चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये चैप्टर है। इसमें हम हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में समझने की कोशिश करेंगे और हर एक बात पे जो है प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे समक्ष क्वेश्चनों के रूप में जो होगा कुछ क्वेश्चन होंगे जिसको एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और उसके बारे की में विशेषताओं का जो है हम आपके समक्ष रखेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है आप लोगों के लिए और एग्ज़ाम व्यू से भी। तो हर एक क्वेश्चन को आपको जैसे देखना है, समझना है, एनालाइज करना है। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हियर, politics of planet development. That's an important chapter, class 12 CBSE NCERT political science here. Next question arrive here, that's important. State the main agreement in the debate that ensued between the industrialization and agricultural development at the time of the second 5-year plan. That's an important question for the exam view here. The industrializations and agricultural development at the time of second 5-year plan. The debate here. You know that that's important. At the time of second 5-year plan, some controversial issue rose in a reference of relevancy of agriculture over industry. That's important here, controversial here issue of second 5-year plan there. A second 5-year plan emphasis on industry in a place of agriculture are the rural India. That's important. First 5-year plan, there is a only fair here issue for the agriculture, but second 5-year plan emphasis the industry in place of agriculture, but second year there is a industrialization. And J.S. Kumarappa and Gandhian economists propose an alternative blueprint to the emphasis of the rural industrialization. Second 5-year plan main base of the rural industrialization here. And there is a main thought here, J.C. Kumarappa and Gandhi economists propose alternative of blueprint for the rural industrializations here. Other debated that without any increasing of industrial sector, poverty could not be liberated here. You know that India plan did not we have a agrarian struggle to be a boost the production of food grain. It also proposed a program of community development spend large sums of irrigations project, and failure was not with that of policy but of its unknown implementation because of the politics of land owning classes here. That's an important point here. It is a proposed that a program of community development spent a large sum of regulations project, and failure was not to be policy but it is a non-implementations because of the politics of land own classes. And besides they have also agreed that if the government had spent more money on agriculture, and it would be not have solved the massive problem of our rural poverties.
That's an important point here. There is a debated here in this point here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष चैप्टर आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नियोजित विकास की राजनीति, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ चैप्टर है। क्लास 12वीं CBSE NCERT पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान का जो हमारा है चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और अंतिम क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय औद्योगिकरण और कृषि विकास के बीच चली बहस का तर्क बताएं। आपको पता ही होगा कि हमारे समक्ष देखा जाए तो पहली पंचवर्षीय योजना जो बनाई गई थी वो कृषि पे आधारित थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी औद्योगिक पे आधारित थी। अब यहाँ पर जब दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई गई औद्योगिकरण के रिगार्डिंग, तो औद्योगिक और कृषि के बीच एक बहुत बड़ा बहस छिड़ गया, क्योंकि 5 वर्ष में कृषि में इतना डेवलपमेंट नहीं हो सका जितना हमने सोचा था। तो जर्नल सी बात है, बहुत से लोग इस पे बहस करने लग गए कि हमने पहली पंचवर्षीय योजना जो है पूरी तरह सफल हुआ नहीं, कि हम जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण के जो है पीछे पड़ गए। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बहुत बड़ा सवाल था वहाँ के समर्थकों में और बड़े बड़े जो है विशेषज्ञों में, कि हम आखिर जो है दूसरे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हम कृषि को क्यों पीछे छोड़ रहे हैं। और ये सब बहुत बड़े इंपॉर्टेंट तर्क थे। कहते दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय उद्योग की तुलना में कृषि की प्रसंगता के संदर्भ में कुछ विवाद उसमें मुद्दे उठे, क्योंकि कृषि उस समय उस तरह से प्रफुल्लित नहीं हुई जितना होना चाहिए था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि या ग्रामीण भारत के स्थान पर उद्योग पर जोर दिया गया। सबसे पहली बात तो यही थी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के जगह पर जो है उद्योग पर जोर दिया गया। उस समय गांधीवादी और शास्त्री JC कुमारप्पा ने ग्रामीण औद्योगिकरण पर जोर देने के लिए एक वैकल्पिक खाक प्रस्तावित किया, क्योंकि गांधी जी ये विचारधारा रखते थे कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और जो है वास्तविक जो लोग भारत के बसते हैं वो गांव में ही बसते हैं। ये बात गांधी जी का विचारधारा था और गांधी जी के विचारधारा के कारण JC कुमारप्पा ने इसी बात का समर्थन किया। कुमारप्पा ने ग्रामीण औद्योगिकरण पर जोर देने के लिए एक वैकल्पिक खाक प्रस्ताव रखा कि औद्योगिक पर हमें जोर देना चाहिए, लेकिन हमें कृषि को जो है पछाड़ना नहीं चाहिए। भारतीय लोक दल के नेता चौधरी चरण सिंह ने भी टिप्पणी की कि ग्रामीण कल्याण की कीमत पर शहरी और औद्योगिक वर्गों में समृद्धि पैदा करने वाली योजना है, कि जो हम औद्योगिक विकास की तरफ जा रहे हैं उसका एक ही मतलब है कि हमने ग्रामीण कल्याण को जो है पीछे छोड़ दिया है। और ये भारतीय लोक दल के नेता चौधरी चरण सिंह का साफ विचारधारा थी और ये महत्वपूर्ण भी था। कहते हैं एक नीति सफल हुई नहीं कि हम दूसरे नीति की तरफ आगे बढ़ गए। हमारे देश में आज भी यही प्रोग्राम चल रही है। हमारा एक नीति सफल होती नहीं है कि दूसरा सरकार की नीति सामने खड़ी हो जाती है। ये बड़ी बड़ी विडंबना है। पहले एक को दूसरे शख्स का रूल को लागू कीजिए, तब दूसरे का अनुसरण कीजिए। लेकिन अगर आप एक के बाद एक रूल रेगुलेशन चेंज इतना जल्दी करते जाओगे ना, तो लोग नहीं समझ पाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है और लोग परेशान हो जाते हैं। कहते लोगों को परेशान करना आजकल की सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता बन गई है। आए दिन रूल रेगुलेशन को चेंज करना, आए दिन करना। और यहाँ पर ऐसे ही हुआ कि पंचवर्षीय योजना जो थी पहले तो सफल हुई नहीं इतना अधिक, और दूसरा लेके आ गए वो भी औद्योगिकरण के लिए। तो जनरल सी बात है, गाँव का जो है अनदेखा करना। यहाँ पर इसी बात के ऊपर बहस चलती रही। देखा जाए तो अन्य लोगों ने बहस की एक औद्योगिक क्षेत्र वृद्धि के बिना गरीबी कम नहीं की जा सकती। ये बहुत महत्वपूर्ण बहस थी कि लोगों ने बहस की कि औद्योगिक क्षेत्र वृद्धि के बिना हम गरीबी कम नहीं कर सकते। लेकिन ये बात गलत है। अगर हम भारत में अगर गरीबी कम करना चाहते हैं तो हमें कृषि के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कृषि में जितना उत्पादन होगी उद्योगों में ही उतना उत्पादन होगा, और कृषि में अगर उत्पादन हुआ तो इसके लिए बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पर इसको हम भेज सकते हैं और वहाँ से जो है हम अच्छे खासे भारत में जो है डॉलर ला सकते हैं। तो इससे जो है भारत में गरीबी भी कम होगी और भारत के लोग जो है विकास भी करेंगे, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश ही कहलाता है। आज से भी, पहले से भी और फ्यूचर में भी यही कहलाएगा, क्योंकि हम कृषि पे काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान हमारा पूरे विश्व में है और ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है।
देखा जाए तो इस पे बहुत बड़ी बहस थी कि बहुत से लोगों का विचार था कि जब तक हम औद्योगिक विकास नहीं करेंगे हम गरीबी कम नहीं कर सकती। लेकिन ये तो सिर्फ एक राजनीतिक चाल थी, राजनीतिक डिबेट थी, बहस थी। कहते भारत की योजना में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोई कृषि नीति नहीं थी, कि भारत की योजना जो बनाई गई थी उसमें खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि के संबंधी कोई भी रणनीति तैयार नहीं की गई थी, यानी कृषि को छोड़ दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। और इससे समुदाय विकास के कार्यक्रम भी प्रस्तावित किए गए। देखिए, समुदाय विकास के कार्यक्रम भी दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है प्रस्तावित किया गया। और सिंचाई परियोजना पर बड़ी रकम खर्च की और विफलता नीति नहीं बल्कि भूमि स्वामी वर्गों की राजनीति के कारण इसके कामयाबी में विफलता थी। यानी देखा जाए तो बेशक सरकार ने यहाँ परियोजना पर बड़ी रकम खर्च की, लेकिन ये विफल रहा और सारे के सारे जो फ़ायदा थे, जो बड़े बड़े भूमि स्वामी थे, उनको ये प्राप्त हुआ। इसके अलावा उन्होंने ये भी तर्क दिया कि यदि सरकार ने कृषि पर अधिक पैसा खर्च किया होता तो इसे ग्रामीण गरीबी की व्यापक समस्या का समाधान नहीं होता। अब यहाँ पर सबके अपने अपने तर्क हैं, सबके अपने अपने बहस है। कहते हैं विचार रखना सबका प्राथमिक दायित्व होती है, अपना अधिकार है, लेकिन जो बात सही है उसी पे अनुसरण किया जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि हम किसी बात को एनालाइज करें, समझने की कोशिश करें कि कौन सा चीज़ें कहाँ पर हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और कैसे ये विकास के अपनी चरम सीमा पर पहुँचेगा। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन का सिलसिला चल रहा था, चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति के अंतर्गत यानी पॉलिटिकल प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट ख़त्म हो जाता है। हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन किए हैं वो एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। अगर समझदार बच्चे वो करेंगे जो करना चाहिए, नोट करेंगे, समझेंगे, क्योंकि नोट नहीं कीजिएगा तो एग्ज़ाम तक आपके पास शायद ना भी रहे। कहते हैं तो यूट्यूब पे जब मर्जी देख सकते हो, उसको कोई बुराई नहीं है, लेकिन कॉपी पे भी नोट करना फ़ायदेमंद रहता है। ठीक है, इसलिए कॉपी पे नोट कीजिए, से अक्षरों का भी सही मार्गदर्शन होता है, क्योंकि लिखने में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। इसलिए अक्षरों को नोट कीजिए, सोचिए नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ, देखिए दोस्तों, कहते हैं जहाँ समझ आए वही बात सही है। और त्रिपाण चंद्र एक सीरीज वाइज चलता है, आपके लिए हर क्षेत्र में हर जगह आपके लिए ही कार्यरत है। कहते हैं आपने देखा ही होगा कि हर क्लास के बच्चों के जैसे जैसे डिमांड रहते हैं वैसे वैसे मैं वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ। कभी 8th का, कभी 9th का, कभी 10th का, कभी 12th का, कभी BA का, कभी MA का। तो जर्नल सी बात है, ये आपके लिए ही त्रिपाण स्टडी सेंटर है। जो समस्या आएगी उसको कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, हम आगे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मैं किसी भी कमेंट जो बच्चे करते हैं उनसे मैं कभी दुखी नहीं होता हूँ, चाहे वो जो मर्जी मुझे कहें, इससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो सिर्फ इतना बात से फ़र्क पड़ता है कि आप देखिए, समझिए, अगर अच्छा लगता है दूसरे बच्चे से शेयर कीजिए। अगर शेयर नहीं करते हो तो मुझे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जैसे आपको समझ में आ गया उसे दूसरे बच्चों को भी समझ में आ जाना चाहिए, जिससे दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हो सके। ये विचार काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इसे सोचना नहीं होता दोस्तों, जितना हो सके शेयर करने की भावना आपके मन में बना रहना चाहिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। देखिए, कहते हैं ना, हेल्प करने का इस छोटा सा साधन है। मैं जानता हूँ कि अगर आपको ना पसंद हो तो मत कीजिए। कहते हैं जो पसंद आए वही कार्य करना चाहिए, लेकिन ये पढ़ाई का सतर है, शिक्षा का माध्यम है। शिक्षा को माध्यम जो है शेयर करने में कभी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हाँ, गलत चीज़ें अगर शेयर कर रहे हो तो इसमें ज़रूरी हिचकिचाहट होनी चाहिए, क्योंकि युवक उसको काफ़ी प्रभावित भी कर सकता है। लेकिन वीडियो नहीं प्रभावित करता। अगर ये वीडियो शेयर करते हो तो उनको अगर समझ में आएगा तो रखेंगे बच्चे, नहीं है तो जनरल सी बात है, लीव कर जाएंगे, क्विट कर जाएंगे। कोई इसमें ज़बरदस्ती की सवाल नहीं उठता है। सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जितना सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन चाहते हो कि और भी आपको प्राप्त होता ही रहे, क्योंकि आपको तो पता है कि समय समय पर हर वीडियो बनता रहता है। और ये प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कहते हैं 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सारी वीडियो उपलब्ध है। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इतने सारे वीडियो, इतने सारे क्लास के, समझिए 8 से लेकर MA तक बच्चों यहाँ जुड़ सकते हैं और जुड़ के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।